Yes, students. So tissues are group of cells that perform a specific function. Function same perform करते हैं, but cells may be of similar or dissimilar structures. And in this chapter, we will come to know about some important plant and animal tissues. Let us start with plant tissues first. Plant tissues are actually classified into two types on the basis of division. जो उनमें डिवीजन चलता रहता है, अगर वो थ्रू आउट लाइफ चलता है, तो दोज सेल्स आर नोन एज, और दोज टिश्यूज आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. And if they have lost the ability to divide further, so those tissue acquire a permanent shape, size and function in a plant body, and these tissues are known as permanent tissues. So basically जो plant tissues हैं दो types के हैं, meristematic and permanent. Meristematic tissues are actually responsible for the growth of plant. Okay, तो growth plant की basically हमारी body की तरह इस तरह से throughout body में नहीं होती है, but it actually takes place in specific regions. टिप्स पर होती है ग्रोथ, या फिर लेंथ में जो ग्रोथ होगी वो नोड्स के बीच में जो इंटरनोडल रीजन है वहां पर होती है. तो टिप्स पे जो ग्रोथ है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टाइप ऑफ meristematic tissue known as apical meristem. This meristematic tissue is present at the tips of roots and stems, and it helps in linear growth. Lateral meristem side पर present होता है, and it helps to you can say increase the girth or the width. और ये generally तब होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब प्लांट ओल्ड होने लगता है तब उसकी थिकनेस ज्यादा बढ़ती है. Intercalary meristem helps to increase the length of internodal region. And permanent tissues are the tissues which have lost their ability to divide, और एक specific function वो perform करते हैं, specific shape हो जाती है उनकी. तो these are of two types. अगर वो एक ही टाइप के टिश्यू से बने, एक ही टाइप की सेल्स हैं सारी, तो वो सिंपल टिश्यू है and simple permanent tissue. And these are of three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And if they are made up of different type of cells, then they are known as complex permanent tissue, which are of two types: xylem and phloem. So let us discuss them in detail. So first of all, just a minor look at this difference between meristematic and permanent tissues. तो meristematic tissues जो हैं वो continuously dividing cells से बने हैं, but permanent tissues do not divide. The cells do not divide continuously. Rather, they have lost the ability to divide. Cells small है meristematic tissues की, and cell wall बहुत thin है. Nuclei large nucleus है इनमें. वेक्यूल्स जनरली प्रेजेंट है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो काम है वो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन का है. तो सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली हो और एक मतलब अच्छे उसमें जो न्यूक्लियस का जो रोल होता है सेल डिवीजन में, दैट इज द मेन. तो न्यूक्लियाई आर वेरी प्रोमिनेंट एंड लार्ज, और साइटोप्लाज्म बहुत एक्टिव होता है इन सेल्स का, और कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट है सेल्स में. इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हाई हैं बिकॉज ज्यादा एनर्जी चाहिए सेल डिवीजन के लिए. तो वेक्यूल्स एब्सेंट हैं बिकॉज वेक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें वेक्यूल्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो नीड टू स्टोर एनी मटेरियल. इनका बेसिक काम है सेल डिवीजन, माइटोसिस में पार्टिसिपेट करना. फॉर दैट दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर हाई, न्यूक्लियाई आर प्रोमिनेंट एंड लार्ज, एंड सेल वॉल थिन. तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं एक सेल डिवीजन के लिए. एंड these cells are variable in shape, that you will come to know in parenchyma, sclerenchyma as well. Cell wall thick है as compared to meristematic tissue. अगर हम बात करें तो collenchyma, sclerenchyma, they have a thicker cell wall. Nuclei are small because cell division बंद हो चुका है, तो cytoplasm भी इतना active नहीं है, nucleus भी prominent नहीं, मतलब है but उतना specific नहीं है. Vacuoles are present because parenchyma के अंदर जो बेसिकली वेक्यूल का रोल है दैट इज स्टोरेज. तो दे हैव प्रोमिनेंट वेक्यूल्स. इंटरसेल्युलर स्पेसेस मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू. एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर क्वाइट लो बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेसर एज कंपेयर टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स. नेक्स्ट इज अभी जो मैंने डिस्कस किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज
have the ability to enlarge, stretch and differentiate into different types, other types of cells as they get mature. तो mature होने पर वो variety of permanent tissues form करते हैं. Cells otherwise young होती हैं and जो immature cells हैं उनमें ability रहती है continuous division की, but after maturity, after attaining maturity, they become permanent tissue. तो ये जो permanent tissue बनने का process है इनसे, that is known as differentiation. Meristematic cells are all living cells. हमेशा ये living रहेंगी. डेड तब होंगी जब इनके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी बंद हो जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी इन फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. Cells are very active with dense cytoplasm. Cells can be oval, rounded or polygonal in shape. They have a large prominent nucleus but no vacuoles. Intercellular spaces नहीं है, compact arrangement है cells का, and cells are small in size with very high metabolic rate. Next is types of just wait. So first of all, types of meristematic tissues, apical meristematic tissues, or they are also known as apical meristems. They are located on the tip of root and stem. As you can see in the diagram, tip जो है stem ये दिखाया हुआ है, stem की tip पे जो green portion है, that is apical meristem. और जो नोड्स जहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं स्टेम से, उस रीजन को हम नोड कहते हैं. और साथ में सपोज एक लीफ आपको ये जो दिख रही है, इसके बेस पे, तो एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड नोडल इंटरनोडल रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और जो साइड्स में आपको विजिबल हो रहा है, दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो दीज आर द पोजीशंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो जो टिप पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, दैट हेल्प्स इन growth of root and stem. The linear growth जो basically length में growth है, उसके लिए ये responsible है. Next is intercalary meristems are located at the internodes and at the base of the leaves. और ये help करता है length of stem in the region of nodes, internodes and leaves. ये जितना भी region है tip को छोड़ करके बाकी जो length increase होगी, that will be due to intercalary meristem. तो एक ओवरऑल लेंथ जो प्लांट की बढ़ती है, दैट इज ड्यू टू एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोथ. लेटरल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट. लेटरल कहते हैं साइड्स में प्रेजेंट होना, पेरिफेरल रीजन में होना. एंड दीज मेरिस्टेम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द स्टेम बाय डिवाइडिंग रेडियली. रेडियली मतलब जो साइड्स हैं, अगर आप एक सर्कमफेरेंस देखो सर्कल की, तो उसको हम साइड्स जो कहेंगे, रेडियल डिविजन्स इसमें होते हैं, तो ये थिकनेस इंक्रीज करता है प्लांट की. एंड द वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर टू टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. ये सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के एग्जांपल है. जब प्लांट की थिकनेस बहुत बढ़ जाती, ट्री जब बनने लगता है वो, तो उसके वैस्कुलर सिस्टम, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं फ्लोएम जाइलम, उसके अंदर सेकेंडरी कैम्बियम बनने लगता है, उसमें मतलब हार्डनेस आ जाती है उसकी वजह से. एंड टू टाइप्स ऑफ जो दूसरा है कॉर्क कैम्बियम. ये जब कॉर्क बनता है तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनना शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क. तो ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जांपल है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है व्हेन द ट्री और यू प्लांट बिकम्स ओल्डर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री. नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज बेटा टू टाइप्स के अभी आपको बताया मैंने. एक ही टाइप की सेल्स हैं सारी, तो वो सिंपल है. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं तो वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो लेट अस स्टार्ट विद सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्स्ट. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज पैरेन्काइमा. फर्स्ट टाइप है उसका पैरेन्काइमा. दिस इज द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. सारी सेल्स जो हैं वो अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है. नॉर्मल जो थिन सेल वॉल है, अनस्पेशलाइज्ड का मतलब है कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, नॉर्मल सेल्स हैं. बेसिक पैकिंग टिश्यू कहते हैं इसको हम, क्योंकि प्लांट की जितनी भी एम्प्टी स्पेस है वो फिल्ड रहती है पैरेन्काइमा के थ्रू. तो ये मेजर ग्राउंड टिश्यू है प्लांट्स का. एंड द सेल्स आर लिविंग इन नेचर एंड दे हैव वेरी थिन प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है. आप डायग्राम में देखो सेल्स जहाँ पे ज्वाइन हो रही है, बीच बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं.
तो दीज आर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, और इस वजह से जो पैकिंग है वो कॉम्पैक्ट नहीं है. ओवल, स्फेरिकल और पॉलीहेड्रल शेप्ड सेल्स, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल इज प्रेजेंट. ये जो आप दूसरा डायग्राम देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका अगर हम देखें तो उसमें आपको लार्ज वैक्यूल विजिबल हो रही है. दैट इज बिकॉज द मेजर फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू स्टोर फूड. और दो डिफरेंट टाइप के पैरेन्काइमा प्लांट्स में इसकी टाइप्स हैं. अगर पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और वो हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस में, जब प्लांट यंग होता है तो स्टेम में भी होती हैं, अदरवाइज लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरेन्काइमा. तो दिस टाइप ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच हेल्प्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन लीव्स नोन एज क्लोरेन्काइमा. और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा की जो कैविटीज है उसके अंदर एयर फिल हो जाती है, तो ये एयर फिल्ड कैविटीज हेल्प करती हैं प्लांट को फ्लोट करने में, उसकी डेंसिटी कम कर देती हैं. तो दैट फॉर्म इट इज नोन एज एरेन्काइमा. नेक्स्ट इज लोकेशन. कहाँ है पैरेन्काइमा की? इट इज लोकेटेड ऑल ओवर द प्लांट. एक बेसिक ग्राउंड टिश्यू है, बेसिक पैकिंग टिश्यू है, तो रूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में, हर जगह पे प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ द सॉफ्ट. जितना भी पार्ट आप देखते हो फ्रूट का या लीव्स के अंदर, लीव्स में मीजोफिल कहते हैं उसको, जो पूरा ग्राउंड टिश्यू है लीव्स का. बाकी रूट एंड स्टेम में इसको ग्राउंड टिश्यू, मेजर ग्राउंड टिश्यू की फॉर्म में ये हर जगह पे प्रेजेंट है. इसके बीच बीच में बाकी टिश्यूज लोकेटेड रहते हैं. फंक्शन है स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, photosynthesis, and to provide buoyancy in floating plants. Next is collenchyma. Collenchyma एक specialized supportive tissue है. Specialized कैसे है? Parenchymatous cells की तरह thin cell wall exactly thin नहीं है, uniform मतलब जो थिनिंग था उसके अंदर वो यहाँ पे एक कॉर्नर्स पे अगर आप डायग्राम में देखो तो यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ है डायग्राम में, दैट इज the deposition of pectin on the corners of this cells of collenchyma. अब देखो कॉर्नर्स पे जब डिपोजिशन आ गया तो जहां पर एक कॉर्नर पे ही तो सेल्स आपस में दूसरी सेल्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं. तो ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो पैरेन्काइमा में प्रेजेंट थे यहाँ एब्सेंट हो गए हैं. और मोर ओवर कॉलेनकाइमा में जो कॉलेन वर्ड है, कॉलेन वर्ड एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्लू. मतलब ये एक तरह का ग्लू जैसा मटेरियल होता है पेक्टिन, जो इन सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देता है. एडेसिव की तरह ये रोल प्ले करता है. जैसे आप किसी चीज को पेस्ट करने के लिए गम यूज करते हो, तो ये एक तरह का ग्लू या गम लाइक मटेरियल है which helps to bind the cells with each other. अब सेल्स जब एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगी तो क्या होगा? जैसे जो एरियल पार्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये हवा में रहती हैं. तो व्हेन विंड ब्लोज, तो अगर ये बाइंडिंग नहीं होगी सेल्स में तो इजीली द ब्रांचेस एंड द लीव्स कैन बी ब्रोकन डाउन. तो ये एक तरह की इजी बेंडिंग अलाउ करता है प्लांट्स में बिकॉज ऑफ द टेक्सचर ऑफ और ग्लू लाइक टेक्सचर ऑफ material pectin which is deposited at the corners of these cells. Okay, so this is the major role or you can say function of this tissue. Intercellular spaces absent है. cells का जो shape है थोड़ा elongated and polygonal shape. polygonal आपको ये इस सेक्शन में दिख रही है. ट्रांसवर्स सेक्शन में longitudinal जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें आपको elongated shape दिख रही है. A centrally located vacuole is present, but vacuole present है but still इतना ज्यादा storage का रोल नहीं है. May contain, ये टिश्यू में भी मतलब कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है. Next is location. They are present below epidermis in stem. Stems की जो epidermis है, मतलब epidermis the outermost tissue of the cell जो कवर करता है प्लांट बॉडी को, उसके below ये present है स्टेम के अंदर. और लीफ स्टार्क होता है जो पेटियोल जिसको हम कहते हैं, जहां से लीफ अटैच रहता है स्टेम के साथ, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तभी वो फ्लेक्सिबल होती है. आप वहां से फोल्ड कर सकते हो लीफ को, बट वो अलग नहीं होगी ब्रांच से. मिड रिब ऑफ लीफ की जो मिड वाली सेंट्रल मोटी रिब होती है वो भी काफी फ्लेक्सिबल होती है एंड यू कैन फोल्ड द लीफ एट दैट पोजीशन. तो ये जहां जहां पे आप इजी बेंड कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी शो होती है प्लांट्स में, वहां पे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है. जनरली इट इज एब्सेंट इन रूट्स, क्योंकि रूट्स एयर में नहीं रहती हैं और रूट्स को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वहां पर उनको बेंड होना है या कुछ भी, तो जनरली इट इज एब्सेंट इन रूट्स. फंक्शन है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अलाउज इजी बेंडिंग एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग पार्ट्स. बेसिकली सपोर्टिव टिश्यू है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यंग होता है जब प्लांट्स.
जब प्लांट ओल्ड होने लगता है तो बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा हो जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने वाला टिश्यू. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा. तो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरन वर्ड का मतलब होता है बहुत हार्ड सा कुछ, मतलब थिक और हार्ड मटेरियल. तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की जो सेल्स हैं, ये जैसे जैसे प्लांट मेच्योर होने लगता है उस टाइम पे प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन होने लगता है. दैट सेकेंडरी सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिग्निन. सेल्यूलोज तो है ही है सब में, प्राइमरी जो सेल वॉल है वो तो सब में प्रेजेंट है, बट उसके ऊपर एक थिक डिपोजिशन आती है लिग्निन की, और ये यूनिफॉर्म थिकनिंग है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, पूरी हर तरफ से थिक है. कॉलिनकाइमा की तरह सिर्फ कॉर्नर्स पे ही थिक नहीं है. So this even or uniform thickening of deposition is responsible for the cells to become dead. जब ये सेल पूरी तरह से लिग्निन से कवर हो जाती हैं, तो लिग्निन एक तरह का ऐसा मटेरियल है जो वाटर और गैसियस एक्सचेंज को बंद कर देता है सेल्स के अंदर. तो सेल्स बिकम डेड, साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है, तो ये अंदर से बिल्कुल खाली हो जाती हैं सेल्स. एंड एज यू कैन सी इन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन. और ये ल्यूमेन बहुत नैरो हो जाती है क्योंकि सेल वॉल एक्सट्रीमली थिक है. ठीक है. और जो कहीं कहीं पे कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे लिग्निफाइड डिपोजिशन नहीं होता, दैट रीजन इज नोन एज पिट रीजन. नेक्स्ट लोकेशन है इनकी. जितने भी आप सीड्स देखते हो, सीड्स के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है. चाहे आप एप्पल का सीड देखो, छोटा सा सीड है लेकिन उसके ऊपर हार्ड कोटिंग है. आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, इनके सीड्स के ऊपर तो बहुत हार्ड कवरिंग होती है. कोकोनट की कवरिंग, ये सारे सीड कोट जो हार्ड सीड कोट्स हैं नट्स के ऊपर, वो सारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हैं. फाइबर्स की फॉर्म में. एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू दो टाइप का होता है, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स. तो फाइबर्स, जितने भी प्लांट्स की फाइबर्स हम यूज करते हैं और किसी भी फ्रूट के अंदर भी जो फाइबर्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. ग्रिट ऑफ फ्रूट्स, ग्रिट होता है जो फ्रूट के अंदर एक हार्ड टेक्सचर. कई बार आप गुआवा खाते हो तो इतना हार्ड होता है कि इट इज नॉट इजी टू च्यू इट. आप कहते हो ना कितना हार्ड ये निकला अमरूद, तो वो दैट ग्रिट कहते हैं उसको, जितना हार्ड टेक्सचर फ्रूट का होता है. तो दैट ग्रिट ऑफ फ्रूट्स इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस. हो जितना ज्यादा स्क्लेरेनकाइमा उसमें प्रेजेंट होगा उतना हार्ड होता जाएगा फ्रूट. हस्क ऑफ कोकोनट एक्सेट्रा. एंड फंक्शन, जो हस्क ऑफ कोकोनट, तो जो आपने कोकोनट की जो ऊपर के फाइबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं हस्क. वो बेसिकली ये जितने भी फाइबर्स हैं इकोनॉमिकली भी, कमर्शियली हम लोग यूज भी करते हैं इनको. इनसे बहुत सारी चीजें भी बनती है, तो दे आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ एज वेल. फंक्शंस हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, एंड फाइबर्स जो हैं वो इसके बेसिकली कमर्शियली यूज होते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. दो टाइप का है बेसिकली. आप डायग्राम में देख रहे हो, वाटर को अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है रूट से बाकी पार्ट्स तक, एंड फ्लोएम जो है वो फूड बन रहा है लीव्स में, तो लीव से थ्रू आउट द बॉडी फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है, एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर एक्चुअली द वास्कुलर टिश्यू. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो बेसिकली ग्राउंड टिश्यू है, मतलब हर जगह पे प्रेजेंट होंगे, बट वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, और स्कैटर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट्स. बट उनका स्पेसिफिक काम क्या है कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले करते हैं, कोई एज सच उनका स्टोरेज या और काम नहीं. तो ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड करता है ये पार्ट, ये काम कि वो फूड और ऑक्सीजन और वाटर को अपने डिफरेंट सेल्स तक लेके जाता है. तो सेम function is performed here by complex permanent tissues. They are of two types, xylem and phloem. और इस डिफरेंट टाइप की सेल्स की ग्रुप है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं. Xylem is a vascular tissue to conduct water, consist of 4 types of cells. या उसके जो components है वो 4 types के हैं, tracheids, vessels, parenchyma and fibers. And out of these only parenchyma is living. सिर्फ इसका एक component parenchyma जो है वो living है, बाकी के सारी dead cells हैं. dead किस लिए हैं? क्योंकि tracheids and vessels की जो cell wall है बहुत thick होती है, क्योंकि एक तरह का column बन जाता है xylem cells का. ये आप diagram में देखो, तो column is formed by these tracheids, और ये tracheids and vessels collectively एक column form कर रहे हैं, और इस column के अंदर कोई
मतलब आप कह सकते हो कि एक कॉन्टिन्यूस चैनल फॉर्म हो जाता है जिसमें वाटर और मिनरल्स कंडक्ट होते हैं और उनकी जो वॉल है वो बहुत थिक रहती है, तो इसलिए ये जो सेल्स हैं ये डेड होती है मेच्योरिटी पे। सिर्फ एक जाइलम पैरेन्काइमा है जो स्टोर करने का काम कर रहा है, इनके लिए फूड स्टोर करता है इन सेल्स के लिए, तो दैट इज लिविंग, अदरवाइज ऑल अदर सेल्स आर डेड। और जाइलम इस डेड सेल्स की वजह से ही मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और जितना प्लांट मेच्योर होता जाता है ट्री की फॉर्म में, उतना ही जाइलम की जो वॉल्स हैं थिक होती जाती हैं, स्टिफेंड होती हैं, वो लिग्निन डिपोजिशन होता रहता है, एंड दीज थिक सेल्स with lignified cell wall are known as wood also. Commonly जितना wood portion हम plant का use करते हैं stem का, that is all xylem. तो xylem को common language में wood भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो दूसरा वस्कुलर टिश्यू है जो फूड कंडक्ट करता है। फ्लोएम में भी 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं। सीव ट्यूब्स एंड सीव प्लेट्स, एक्चुअली एक कलेक्टिव ही इसको आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये आप डायग्राम में देखो तो ये वाली सीव ट्यूब्स हैं और इन सीव ट्यूब के एंड पे ये प्लेट्स बनी हुई होती हैं, तो इसको एक आप पूरा एक ही कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हो। तो सीव ट्यूब्स एंड सीव प्लेट्स कलेक्टिवली वन कंपोनेंट। सेकंड इज कंपेनियन सेल जो इन सीव ट्यूब्स के बिल्कुल साथ में एडजेसेंट रहती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम parenchyma and phloem fibers. And out of these, only phloem fibers are dead, other components are living. बाकी सारे component living हैं। living क्यों है? क्योंकि food को ट्रांसफर करने में फ्लोएम सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जाइलम में जो वाटर का कंडक्शन है वो ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है अपवर्ड, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर बाहर निकलती रहती हैं और उन वाटर वेपर्स के रिमूवल से एक सक्शन पुल जनरेट हो जाता है अपने आप ही जाइलम के चैनल्स के अंदर, तो वो अपने आप वाटर अपवर्ड मूव करता है, वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जाइलम को सेल्स लिविंग जरूरत नहीं है। बट फ्लोएम में ऐसा कोई सक्शन पुल जनरेट नहीं है। फ्लोएम को ये फूड इधर उधर अपवर्ड बैकवर्ड साइडवेज हर तरफ फूड पहुंचाने के लिए इसको एक्चुअल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय इट्स लिविंग सेल्स। और साथ में जो कंपेनियन सेल्स आप देख रहे हो वो सेल्स हैं जो फूड लेकर आएंगी लीव्स में, जहां पे फूड बन रहा है वहां से लेकर के यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देती हैं सीव ट्यूब के अंदर। तो दिस इज हाउ दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वो कैरी कर रही है लीव से सीव ट्यूब तक। और फ्लोएम फाइबर्स तो थोड़ा बहुत थिकनेस इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं इस टिश्यू को, अदरवाइज फ्लोएम टिश्यू इज नॉट अ मैकेनिकल सपोर्टिंग टिश्यू। जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है बट फ्लोएम नहीं देता, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर लिविंग। So this I have already explained. Function इसका वो ये that conduction of food in both of the direction. ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया हुआ है डायग्राम में। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का जो चैनल आप देख रहे हो, वन वे डायरेक्शन है वाटर एंड मिनरल का, और यहाँ टू वे फ्लो है फूड का फ्लोएम वेसल्स के अंदर। एंड वॉल्स नहीं है, जाइलम की जो वेसल्स हैं वो सारी एक के साथ एक कनेक्टेड है, बीच में कोई प्लेट्स नहीं है। जहाँ फ्लोएम वेसल में देखो आपको इस तरह की सीव प्लेट्स मिल रही हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इसके अंदर। और ये जो सेल वॉल्स के अंदर प्लेट्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम सीव प्लेट्स कहते हैं। नेक्स्ट बेटा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू अगर आप ये थोड़ा फ्लो चार्ट में देखो, इट इज बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स: एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर एंड कनेक्टिव। एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा मतलब एनिमल बॉडी को कवर करना, जैसे प्लांट बॉडी को कवर कर रहा है दिस वन, दिस वे प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस, और उसके बाद ओल्डर स्टेज में कॉर्क आ जाता है ऊपर, बट एनिमल बॉडी इज कवर्ड बाय यू कैन से सारे ऑर्गन्स भी और इवन हमारी बॉडी एंटायर बॉडी भी एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड रहती। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंगल लेयर की फॉर्म में होता है तो जो ये एग्जांपल्स आपकी बुक में है इसकी शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन जो फ्लैट सेल्स फॉर्म हो, मतलब फ्लैट शेप की सेल्स हैं, वो स्क्वैमस एपिथेलियल माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट है, सिंगल लेयर। और दूसरा हमारा जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज प्रेजेंट इन आवर
वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, क्यूबॉइडल शेप में हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब उनके ऊपर सीलिया होते हैं, होता कॉलमनरी है, शेप जो है वो कॉलम जैसी सिलेंड्रिकल रहेगी, वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। तो कॉलमनर टिश्यू में अगर सीलिया है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, अगर सीलिया नहीं है तो वो इंटेस्टाइन के अंदर है, ठीक है। और किडनी के अंदर जो है हमारी किडनी की लाइनिंग, क्योंकि ये हर एक मेजर ऑर्गन की इंटरनल और आउटर दोनों लाइनिंग फॉर्म करता है, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। और हमारे स्किन पे मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये बेटा वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए ये एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से पढ़ लेना, पैराग्राफ पूरा बुक में से। और ग्लैंडुलर टिश्यू की फॉर्म में ये डिफरेंट टाइप की ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में फॉर्म करता है। और दूसरा है फिर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी बॉडी में, दैट इज वेराइटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है, सबसे मतलब पहले आपकी बुक में एरियोलर टिश्यू गिवन है। एरियोलर टिश्यू जो है हमारा एक तरह का बेसिक पैकिंग टिश्यू है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है बॉडी में, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एरियोलर टिश्यू जो है वो पैकिंग टिश्यू है, जैसा प्लांट्स में पैरेन्काइमा है, वही काम हमारा एरियोलर टिश्यू करता है, हर जगह पे प्रेजेंट है, फिल कर रहा है पूरी बॉडी को, खाली जगह नहीं छोड़ता बॉडी के अंदर कोई भी। एंड एरियोलर टिश्यू कनेक्ट स्किन टू मसल्स। हमारी जो स्किन है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, उसके बिलो मसल्स होती हैं, तो मसल्स और स्किन को कनेक्ट करने का काम ये टिश्यू कर रहा है। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, ठीक है, और लिगामेंट्स काफी फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं नेचर में। बोन्स जो है हमारे मेजर सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरे स्केलेटल सिस्टम को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, मतलब स्केलेटल सिस्टम की फॉर्म में बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कार्टिलेज जो है हमारा सॉफ्ट सॉलिड मैट्रिक्स वाला टिश्यू है, जहां पर आप इजीली उन बॉडी पार्ट्स को बेंड कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ है, जैसे आउटर ईयर, हमारे एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रेकिया, और कुछ डेलिकेट ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग भी फॉर्म करता है कार्टिलेज। इवन हर एक बोन के एंड पे भी प्रेजेंट होता है, जिसपे उनमें फ्रिक्शन कम हो। एडिपोज टिश्यू जो है वो स्किन के बीनीथ एक फैट स्टोरिंग लेयर है, जिसमें फैट स्टोर रहता है, और ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, प्लस एक तरह का प्रोटेक्शन देता है, कुशन फॉर्म करके स्किन के नीचे। ब्लड इज द मेजर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे बॉडी में सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है उसको कैरी करता है डिफरेंट सेल्स तक। और इसी तरह का एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ जो है वो व्हाइट ब्लड सेल से बना है, मतलब व्हाइट सेल्स हैं उसके अंदर। ब्लड में व्हाइट, रेड एंड प्लेटलेट्स, 3 टाइप की सेल्स हैं, दोनों मिलके ब्लड एंड लिम्फ हमारा इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं। जितनी भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर द फाइटर्स। Tendons connect bones to muscles and they are generally non-elastic और non-flexible. Flexibility ligaments में ज्यादा है, मतलब जितनी elasticity है वो ligaments में है, जो bones को easily हम एक दूसरे पे joint पे move कर सकते हैं due to elastic ligaments. Next nervous tissue आप बाद में करते हैं, पहले muscular tissue की एक slide देख लेते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में बेटा 3 टाइप्स के हैं। इन तीनों के डिफरेंस और डायग्राम्स अच्छे, इस चैप्टर के डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना। बेसिकली प्लांट टिश्यू में से मेरिस्टेमेटिक एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एनिमल टिश्यूज में से मस्कुलर टिश्यू के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और नर्वस। बाकी रहने देना, एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू के भी नहीं करने, बट मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू डायग्राम्स यू नीड टू प्रैक्टिस। अब ये 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन है स्ट्राइटेड, दूसरे हैं अनस्ट्राइटेड, थर्ड वन आर कार्डियक। स्ट्राइटेड जो मसल्स हैं आपको डायग्राम में इनके ऊपर ऑल्टरनेट बैंड्स जो विजिबल हो रहे हैं, एक डार्क और एक लाइट बैंड, इनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। क्योंकि जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं तो ये लाइंस, जैसे शर्ट्स होती है ना आपकी स्ट्राइप्स वाली शर्ट, वैसे अपीयरेंस आती है इस टिश्यू की। तो दिस काइंड ऑफ टिश्यू इज नोन एज स्ट्राइटेड टिश्यू। स्ट्राइटेड मसल फाइबर, एक्चुअली 3 टाइप के मसल फाइबर हैं ये। और ये जो मसल्स हैं ये टाइप स्ट्राइटेड, ये हमारे जितने भी बोन्स हैं स्केलेटल सिस्टम की, उस हर एक बोन के साथ ये कनेक्टेड है, और इसी टिश्यू की वजह से बोन्स मूव करती हैं। तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट आ रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल जितना भी मूवमेंट, दैट इज ऑल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। दो तरह के प्रोटीन्स हैं जो इन मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में मसल्स के। अब ये जो मसल्स हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखो, सिलेंड्रिकल हैं शेप में, मतलब थ्रू आउट इनका जो डायमीटर है ऑलमोस्ट सेम है, और एक ही सेल में ये इस जगह पे देखो, इस सेल में दो न्यूक्लियस भी विजिबल है। तो दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, तो दे आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिलेंड्रिकल इन शेप, ब्रांचेस नहीं है कोई इनकी, अनब्रांच्ड है। ये इनकी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन हो गया। और इन पर एक डार्क लाइट बैंड्स क्लियरली अपीयर होते हैं, तो ये इसलिए इनको हम स्ट्राइटेड टिश्यू भी कहते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। और अदरवाइज दे आर ऑल्सो नेम्ड एज स्केलेटल मसल्स, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के साथ प्रेजेंट है। और इनका काम क्या है, जितनी भी बोन्स है उनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं ये। तो दे कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि आप अपने बॉडी पार्ट जो अपनी मर्जी से हिला सकते हो, हैंड्स, लेग्स, आपका फेस, आपकी जब मर्जी होती है आप स्माइल करते हो, ऐसे तो नहीं कि आप अपने आप आपकी बॉडी फेस पे स्माइल आ जाती। तो ये फेशियल मसल्स, जो जो बॉडी पार्ट आप अपनी मर्जी से मूव करवाते हो, वो सब वॉलंटरी एक्शंस हैं, एंड वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्राइटेड मसल्स। अनस्ट्राइटेड मसल्स जो हैं वो इस तरह के स्मूथ अपीयरेंस है, मतलब इसके ऊपर कोई देखो लाइंस की विजिबिलिटी, डार्क या लाइट बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्मूथ अपीयर होती है अंडर माइक्रोस्कोप। अब शेप में डिफरेंस देखो, वो सिलेंड्रिकल थी, ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप का मतलब होता है थिन, बिल्कुल पॉइंटेड एंड्स हैं इनके, और बीच में से ये बल्जिंग आउट हो रहे हैं, तो इस तरह की शेप होती है स्पिंडल शेप। तो दे आर स्पिंडल शेप, यूनी न्यूक्लिएटेड, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस ही है, और कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्मूथ टेक्सचर है, कोई स्ट्राइएशंस नहीं है। दे आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स, बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या बाकी और जितनी भी जगह पे आपके मस्कुलर मूवमेंट बॉडी में, आपकी आई का जो प्यूपिल है, ये सारी अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं जो आपके विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। तो ये बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस, आपके यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स हैं, उस मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से ही आपको मतलब फील होता है कि जब वो यूरिनरी बैग फिल हो जाता है, देन हाउ इट, मतलब इन दिस वे इट वर्क्स लाइक दिस। आपकी मर्जी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते इंटरनल एक्शंस को। तो दीज आर अनस्ट्राइटेड मसल्स विच कंट्रोल वेरियस इनवॉलंटरी एक्शंस, और ये स्मूथ मसल्स भी कहते हैं इनको, इनवॉलंटरी भी कहते हैं। थर्ड है कार्डियक मसल्स विच आर बेसिकली ब्रांच्ड। आप देखो एक एक जो है, स्टार्टिंग में ये एक ही पार्ट, एक ही फाइबर था, बाद में दो दो में डिवाइड हो गया, तो दिस इज ब्रांच्ड मस्कुलर फाइबर, और यूनी न्यूक्लिएटेड है बेसिकली, और इनके ऊपर आपको ये बैंड्स की अपीयरेंस है, तो फेंट होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू स्ट्राइटेड कार्डियक मसल्स में फेंट बैंड्स अपीयर होते हैं, और ये हमारे हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट की वॉल्स के अंदर जो टिश्यू है जो हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है, दैट इज कार्डियक टिश्यू। अब इसकी स्पेसिफिक फंक्शन क्या है तो ये भी इनवॉलंटरी, बट ये टिश्यू कभी फटीग नहीं होता, थकता नहीं है, थ्रू आउट लाइफ इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यूज। एक वो नर्वस टिश्यू रह गया था, न्यूरॉन का डायग्राम बेटा कर लेना। वो बेसिकली हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितनी भी हमारे नर्व्स हैं उनको फॉर्म करने का काम करता है न्यूरॉन, और इससे ज्यादा उस पर आपको कुछ स्ट्रक्चरल, बस उसका एक्सॉन, डेंड्राइट्स और ब्रांच स्ट्रक्चर कर लेना, बाकी एज सच डिस्क्रिप्शन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो विद दिस एनिमल टिश्यू इज ओवर. For any doubt you can ask.